गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं अपने एक स्टूडेंट जो कि अभी यूपी में हैं, बताएंगे वो किस जॉब पर हैं। उनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इंटरव्यू है जो कि डेट सब कभी भी आ सकता है, जे का। बहुत बच्चे मैसेज करते हैं सर डेट कब आएगा। गाइस ना ये मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। मेरे हाथ में पढ़ाना, आपके हाथ में पढ़ना है, तो डेट का वेट ना करें। मेरे गुरुजी भी ये कहा करते थे। ठीक है, मेरा नंबर है 7503235358। ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉक के लिए एडमिन के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात करा दी जाएगी। मैं आई कम इन सर से स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं कम इन सर। यस प्लीज कम। थैंक यू सर। सबसे पहले आपका नाम उत्कर्ष है। उत्कर्ष का मतलब पता है आपको? जी सर, उत्कर्ष का मतलब होता है सर ग्रो करना है, यानी उत्थान किसी भी चीज का। ठीक है, वहाँ 3 बातों का ध्यान रखेंगे। अभी आप बैठे हुए हैं कि मैं आई कम इन सर बोलना है, पैनल को ग्रीट करना है, वो बैठने बोले तो थैंक यू बोलना है उनको। ओके सर। कहाँ से हैं यूपी में आप? सर मैं यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर है। सर लखनऊ से ये 140 अराउंड किलोमीटर है, वहाँ से हूँ। ओके, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए उत्कर्ष बाबू। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सर माई नेम इज उत्कर्ष श्रीवास्तव. I basically belong from Balrampur district of Uttar Pradesh. I had completed my basic education from the district Balrampur itself. After that, I had completed my graduation from Gonda district in history. After that, I am currently working in a job of Tata Power as a role of sales and operation executive. In my family, I have my mother and my younger sister who is pursuing masters in commerce. So that's all about me. Okay, Utkarsh, from which year you are doing the job in this organization, and it's a means a private job or semi-government job? No, sir, it's a purely private job. It's a I am private basically job. in a project of Tata Power, and that is of rural electrification. And In which year you have completed your graduation? so graduation I have completed in 2022. 22. And you have started this job from which year? Sir, I have started this job from 2021. 2021. Okay, Utkarsh, means why you want to change a job? Because you are working in this organization since 2021 and you are a very good exposure also. So why you are not continuing in this job and why you are coming to this job? Language is not a barrier, depends on you, English or Hindi. Okay, sir. So from starting, I always wanted to work with government as a government employee, but due to some circumstances, I have to work for the private. Although it is a very good job in which I am working, it is a kind of sales and operation job in which I am meeting to the people regular on daily basis, achieving the targets which are given to me from my senior employees. But what I think, sir, is that I am interested in this job in basically in code jobs from starting. Yeah. Because in my family, I just want there are to several. I just want to give a correction, not say that's government job. Sir, I want to prepare this type of competitive exams and through which the job is under the district court. गवर्नमेंट जॉब बोलना अच्छा नहीं लगता है। वो बोलेंगे कि मतलब अच्छा गवर्नमेंट जॉब देख के आ रहे हो, नहीं तो गवर्नमेंट वर्ड नहीं बोलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम्स होते हैं, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो इस लय से लेके जाना है। बाकी तुमने सही बोला जो बोला। जी सर। हाँ, फैमिली का कुछ सर, बोल रहे थे आप या? जी सर, सर देर आर several members in my family, my uncle and all others who are already working in the courts as advocates or court employees. So I have seen them very closely from my childhood that they are too passionate about the job, and this job is like working in the court is basically like that you are helping the people in between the people. Okay. I think. What do you know about the district court? The district court is basically the third layer of the court, third tier of the court. The topmost layer is the Supreme Court of India. After that, there are high courts, and after that, there are district courts. District courts basically serve around of basically a particular district. Okay. And there are tehsils. Okay. Yes, sir. हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की बात आपने करी है। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राइट नाउ? Sir, currently the Chief Justice of India is Honorable Justice Sanjeev Khanna ji. Okay. And who is the means chief justice of means judge of Allahabad High Court? So currently the judge of. Sorry, sir, I had forgotten the name. No issue. Who is the currently judge of Delhi High Court?
So Delhi High Court, the current Justice of Delhi High Court is Honorable Justice Devendra Kumar Upadhyay. या एंड अरुण वंसाली जो मुझे याद आ रहा है ये हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अरुण वंसाली, हाँ जी सर, यस सर, क्या यही हैं? अरुण बंसाली, यस सर, ऑनरेबल जस्टिस अरुण बंसाली। ओके, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल का नाम बताएंगे क्या बेटा? हाँ जी सर, सर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करंटली हैं सर आर वेंकटा रमन जी, एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज तुषार मेहता। तुषार मेहता। जैसा कि आपने बताया कि आप अभी मीन्स सोलर पावर प्लांट से में एक प्रोजेक्ट में जॉब कर रहे हैं, तो आपने एक सुना है एक मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी? जी सर, सर ये सोलर एंड विंड और जितने भी हमारे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स आते हैं वो इसी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। और करंटली सर इनके जो मिनिस्टर हैं वो ऑनरेबल श्री प्रहलाद जोशी जी हैं। Good. ये मिनिस्ट्री बेसिकली जितने भी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको मैनेज करती है हमारी विद इन द कंट्री। तो आपका तो वहाँ का एक्सपीरियंस कुछ अलग है, यहाँ का एक्सपीरियंस कुछ अलग है, तो वो जॉब का एक्सपीरियंस यहाँ कैसे यूटिलाइज करेंगे? सर जैसे मैंने पहले बताया कि मैं सेल्स एंड ऑपरेशंस में हूँ, तो डेली मेरा इंटरेक्शन जो होता है लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये जो जॉब है इसमें भी पब्लिक इंटरेक्शन यहाँ सिविल केसेस और आपके क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड पब्लिक इंटरेक्शन होगा, आपको पता है? जी सर, जी सर। सिविल और देखना है जब वो लोग क्वेश्चन बीच में इंटरप्ट करके कुछ और पूछने लग जाते हैं तो फिर उसको सुन के उसका आंसर देना है। सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में क्या डिफरेंस होता है केसेस में? सर जो सिविल कोर्ट होती है सर वो बेसिकली सिविल मैटर्स को डील करती है। जैसे हमारे कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू हो गया या कोई फैमिली इशू हो गया, एंड जो हमारा क्रिमिनल केसेस होते हैं वो क्रिमिनल कोर्ट जो होती है वो क्रिमिनल केसेस को डील करती है, जैसे मर्डर, रेप एटसेट्रा, ऑल द केसेस रिलेटेड टू क्राइम। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो टाटा के बहुत फेमस पर्सनालिटी का कुछ दिन पहले निधन हुआ था। जी सर। उनका नाम पता है आपको? सर श्री रतन, जी सर, श्री रतन टाटा जी। ठीक है, वेरी गुड। अभी आप यूपी से हैं, पोस्टिंग भी यूपी में है, तो इतनी दूर हम ले आएंगे, कहीं आपको काम करने में मन न लगे और आप फिर दूसरे जॉब में चले जाएं, तो आप कैसे मैनेज करेंगे उत्कर्ष बाबू? नहीं सर ऐसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली जो है वो दिल्ली एज अ सेंटर प्लेस है हमारी पूरी कंट्री का, और हमारे यहाँ से दिल्ली आना जाना मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा इजी है, स्पेशली फॉर मी, एंड बिकॉज आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली, तो मुझे मैनेज करने में भी कोई इशू नहीं होगा। और सर क्योंकि ये मेरी पैशनेट जॉब है, मैं काफ़ी टाइम से इसके लिए प्रिपेयर भी कर रहा हूँ, और तो मैं बहुत ही अच्छे से सर इस रोल को सर्व करूँगा। जे का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, एक बार ब्रीफ में बताएं बेटा। सर जे एज अ क्लर्क कोर्ट्स में काम करते हैं। इनका सर वर्क प्रोफाइल जो होता है वो क्लर्कियल वर्क प्रोफाइल ही होता है बेसिकली। इसमें हमारे उनको असिस्ट करना, जजेस को असिस्ट करना होता है, एंड ऑल द वर्क जो भी जजेस हमको ऑर्डर करते हैं करने के लिए वो हम लोग परफॉर्म करते हैं। ओके, आप मुझे ये बता दें, अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा है एक स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा है। जी सर। उस स्टेट का क्या नाम है? सर मणिपुर। ओके, प्रेसिडेंट का रूल कौन से आर्टिकल में मेंशन है, और थोड़ा सा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताइए। सर मैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पहले बताता हूँ सर। जो प्रेसिडेंट होते हैं सर, इनका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 53 से 62 तक है, और सर जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका 63 से 72 तक है। सर प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन उनको कहा जाता है हमारी पूरी कंट्री का, एंड वाइस प्रेसिडेंट उनको असिस्ट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के, जो कि आर्टिकल 64 में मेंशन है। आप रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जॉब में हैं, आजकल देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे पॉल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? जी सर। तो अभी हाल ही में आपका सुने कि पेरिस एग्रीमेंट से यूएस के डोनाल्ड ट्रम्प जी ने वापस लिया है अपने आप को, अपनी कंट्री को। हाँ सर सुना है सर, बट ज़्यादा आइडिया नहीं। इसको थोड़ा सा देखना है, ठीक है? आपसे वो लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल अगर थोड़ा सा पूछना चाहें तो ईवी सुने हैं ना, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, ईवी के बारे में, या ईवी या रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बजट में क्या आया है, ठीक है? उसके बाद आपका क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पूछ सकते हैं, तो हम लोग अपना रडार बढ़ा के जाएंगे। यस सर। ओके विकास, लास्ट क्वेश्चन, तकरीबन 10 मिनट होने को है, कि क्या गारंटी है कि आप इस जॉब में रुकेंगे, दूसरा जॉब में स्विच नहीं करेंगे? सर क्योंकि जैसे इस जॉब प्रोफाइल में बेसिकली जैसे मैंने बताया कि मेरा पब्लिक इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा हॉबी है ऐसा, तो ये चीज़ मुझे इसमें मिल रही है इस जॉब में। सेकंड थिंग, दिस इज़ अ परमानेंट दिल्ली जॉब,
तो सर मुझको ये दिल्ली जॉब काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है मेरे लिए। एंड द थर्ड जॉब इज कि इस जॉब में सर आगे कैरियर एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, प्रमोशंस टाइमली हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मुझे मिल सकता है इस जॉब में काम करके। एंड द फोर्थ थिंग इज़ डैट कि मैं कोर्ट्स के डायरेक्ट अंडर काम करूंगा, जो कि हमारा थर्ड पिलर है, और डायरेक्ट मुझे पब्लिक को सर्व करने का मौका मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है मेरे लिए काम करना। तो सर मैं गारंटी देता हूँ कि आगे इन फ्यूचर मैं कभी भी दूसरे ऑप्शंस की तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि इस जॉब में वो सब कुछ मुझे मिल रहा है जो कि एज अ इंडिविजुअल मुझे अपनी करियर के लिए रिक्वायरमेंट्स है। ओके गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका सब्जेक्ट और कॉमन चीज़ें, अगर आप जॉब में हैं तो बाकी कॉमन चीज़ें और आपका जॉब प्रोफाइल वो जरूर पूछा जाएगा। आप फेस टू फेस मॉक और ऑनलाइन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मॉक में बहुत सारे बच्चों का इनरोलमेंट है और मेरे यहाँ क्वालिटी दी जाती है, क्योंकि ये सुपर 50 गुरुकुल है। ओके, धन्यवाद।